So, a very good morning, students. Once again, greetings of the day and welcome to the online lecture series on the course that is Railways, Airport and Waterways. RAW. This course is being designed for the uh, Department of the Civil Engineering student, and in the continuation to the lecture series, this will be the lecture 15 and it will be the continued part of the previous lecture. In previous lecture, I was talking about the numericals related to the negative super elevation, right? And I also proposed some of the formula as well as the questions how to determine the safe permissible speed, right? Now, and restricted speed on the main line as well as the branch line. आज हम इस लेक्चर की स्टार्टिंग, आपको प्रीवियस लेक्चर याद होगा, उसमें मैंने एक आपको असाइनमेंट दिया था प्रीवियस लेक्चर के लिए, राइट? तो इस लेक्चर की स्टार्टिंग जो है हम प्रीवियस लेक्चर के असाइनमेंट से स्टार्ट करते हैं, राइट? तो प्रीवियस लेक्चर का जो असाइनमेंट है वो कुछ इस तरह था, उसको हम सॉल्व करेंगे और फिर एक क्वेश्चन और देखेंगे और फिर यहीं पर न्यूमेरिकल पार्ट जो है जो इक्विलिब्रियम कांट का है, नेगेटिव सुपर एलिवेशन का है, राइट, सेफ परमिसिबल स्पीड का है, रेलवे बोर्ड फॉर्मूला से रिलेटेड है, वो सारे ये 10-12 क्वेश्चंस में जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं उसमें क्या होंगे, कवर हो जाएंगे, राइट? तो ये एग्जाम्पल है जो मैंने लास्ट आपको ये असाइनमेंट दिया था, आपको याद होगा, आप चेक करना मेरे प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो में जा करके। तो वो कुछ ऐसे था, वो असाइनमेंट कुछ ऐसे था। द क्वेश्चन वाज लाइक दिस, व्हाट वुड बी द इक्विलिब्रियम कांट, व्हाट वुड बी द इक्विलिब्रियम, what would be the equilibrium Kant, what would be the equilibrium Kant on a meter gauge, on a meter gauge curved track of curved curved track curved track of 7 degree for an average speed of, for an average speed of trains, of trains 50 kmph, of trains 50 kmph. Also calculate the maximum permissible speed, also calculate the maximum, also calculate the maximum permissible speed, maximum permissible speed after allowing, after allowing the maximum Kant deficiency, after allowing the maximum Kant deficiency. Kant deficiency for meter gauge is, maximum Kant deficiency for meter gauge is 5 centimeters. तो ये था असाइनमेंट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द इक्विलिब्रियम कांट
on a meter gauge curved track of 7 degree for an average speed of trains 50 km per hour. Also calculate the maximum permissible speed after allowing the maximum current deficiency, and the maximum current deficiency for meter gauge is 5 centimeter. सबसे पहला है इक्विलिब्रियम कांट। इक्विलिब्रियम कांट, इसकी वैल्यू क्या होती है? कौन सा ये ट्रैक है? फॉर एन मीटर गेज, ठीक है, ये कौन सा है? मीटर गेज। तो ये क्या होती है? 0.80 v स्क्वायर बाई आर। आर की वैल्यू क्या होती है? 1720 बाई 7। सो ई की वैल्यू हो गई 0.80 इंटू 50 इंटू 50 इंटू आर into 7 by 1720. So E will be 8.14 centimeter. So negative cant equals to E minus cant deficiency. E is 8.14 minus 5 centimeter. Therefore, the theoretical cant equals to actual cant plus cant deficiency. और एक्चुअल कांट कितना है? 8.14 प्लस कांट डिफिशियंसी कितनी है? 5.0। तो थियोरेटिकल कांट यहां से निकल के आएगा 13.14 सेंटीमीटर। तो परमिसिबल स्पीड थियोरेटिकल कांट से कितनी हो जाएगी, उसका हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। Therefore the permissible speed with theoretical cant of 13.14 centimeter, V equals to under root 13.14 into 1720 divided by 0.80 into 7। तो यहां से V की वैल्यू कितनी निकल के आई? अंडर रूट 4040 विच भी इक्वल्स टू 63.4 kmph, ठीक है। रेलवे बोर्ड फॉर्मूला लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू रेलवे बोर्ड फॉर्मूला, बोर्ड स्पीड फॉर्मूला, V max equals to 4.35 under root R minus 67. So V max equals to
4.35 under root r 1720 by 7 minus 67. So V max equals to 4.35 under root 178.7. So V max equals to 4.35 into 13.33. So V max की वैल्यू कितनी हो गई यहां से, वो हो गई 57.78 kmph। और पूछा क्या है, पूछा है व्हाट वुड बी द इक्विलिब्रियम कांट, ठीक है। ऑल्सो कैलकुलेट द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड। तो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड विल बी द लोअर ऑफ द टू वैल्यूज, ठीक है। तो V मैक्स और ये जो V की वैल्यू यहां हमने निकाली है थ्योरेटिकल वैल्यू, इन दोनों के बीच में जो लीस्ट वैल्यू होती है वही हमारी क्या होती है, वही हमारी परमिसिबल मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड होती। सो द मैक्सिमम permissible speed, so the maximum permissible speed is the least of the above two, that is क्या हो जाएगी वैल्यू, सो V max की वैल्यू हो जाएगी, आंसर इसका आएगा 57.78 kmph, 57.78 kmph। ठीक है, ये है इसको सॉल्व करने का तरीका। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वुड बी द इक्विलिब्रियम कांट, मतलब हमको E की वैल्यू निकालनी है ऑन अ मीटर गेज कर्व ट्रैक ऑफ 7 डिग्री, मतलब हमें मीटर गेज दिया हुआ है उसका डिग्री है 7 डिग्री, फॉर एन एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन ऑफ 50 किलोमीटर, मतलब उससे नंबर ऑफ ट्रेन पास हो रही है और उसका एवरेज स्पीड 50 kmph है। ऑल्सो कैलकुलेट द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड after allowing the maximum current deficiency, and the maximum current deficiency for the meter gauge is actually 5 centimeter. So solution, coming to the solution part, so the step 1 always we follow is we determine the equilibrium current using the formula. So if we determine the equilibrium current using the formula for the meter gauge, it will be E equals to 0.80 V square by R, right? So R equals to here 100, that is equals to 1720 by D. So 1720 by 7, so E equals to 0.80 into 50 into 50 into 7 by 1720, so E will be 8.14 centimeters, right? This will be your equation, this will be your first part. We know that negative current equals to E minus current deficiency, and the theoretical current equals to actual current plus current deficiency. Actual current is your 8.14, current deficiency here allowed for the meter gauge is 5 centimeter. So the theoretical current will be 13.14 centimeter. So permissible speed with theoretical current, we will find the formula using 0.8 V square by R, that is E equals to 0.80 V square by R. So V will be E into R upon 0.80 under root. So 13.14 into R 1720 divided by 0.80 multiplied by 7. So V will be 63.4 kmph. Now coming to the, according to railway board speed formula, we have a speed V max equals to 4.35 under root R minus 67. So putting the value of R will get the maximum value. Now we have to determine what will be the permissible speed using that particular current. Okay, so the maximum permissible speed is always the least of the both the values, that is theoretical values and the speed and the speed which is determined by using the railway board speed formula. So the least value is 57.78 kmph, so that will be your answer.
Okay, now you can note it down. We'll move toward the last numerical of this entire negative super elevation, maximum permissible speed, railway board formula, the relation between radius and degree, R and D, okay, and the safe permissible speed, right. तो इस सभी को मिला करके ये 10 से 12 तरह के न्यूमेरिकल्स एक्चुअली प्रोड्यूस होते हैं, जो मैंने आपको एक एक करके सॉल्व करके बताया है. एक और न्यूमेरिकल है जो मैं अभी आपको यहां पे बताता हूं, राइट. सो calculate the maximum permissible speed. Calculate the maximum permissible speed. Calculate the maximum permissible speed. Calculate the maximum permissible speed on a curve of high speed, on a curve of high speed BG track, having the following particulars. Having the following particulars. Having the following particulars. Degree of the curve, degree of curve 1 degree. Amount of super elevation, amount of super elevation equals to 8 centimeter. तीसरा है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व्स, length of transition curves, length of transition curves 130 meters, 130 meters. Maximum speed of the section likely to be sanctioned. Maximum speed of the section, maximum speed of the section likely to be sanctioned. Uh, 153 kmph.
So look at the problem. Calculate the maximum permissible speed on a curve of high speed broad gauge track having the following particular. ठीक है, we have to calculate the maximum permissible speed on a curve of a high speed broad gauge track having the following particular. Degree of the curve 1 degree, amount of super elevation 8 centimeter, length of transition curve 130 meters, maximum speed of the section likely to be sanctioned 153 kmph. Okay, so how will solve it? सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था रेडियस और डिग्री के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं. ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. ठीक है, डिग्री ऑफ द कर्व कितना दिया है? डिग्री ऑफ द कर्व 1 डिग्री. ठीक, hence radius of the curve, hence radius of the curve 1720 by d, 1720 by 1, that is equals to 1720 meters. ठीक है, आगे आए. सेफ स्पीड ऑन द कर्व. सबसे पहला है सेफ स्पीड ऑन दी, रेडियस निकल गया. अब सेफ स्पीड ऑन दी कर्व हाई स्पीड के लिए क्या होगा? फॉर हाई स्पीड्स L इक्वल्स टू 4.58 अंडर रूट R. So L equals to 4.58 अंडर रूट 1720. अब समझ में आया मैंने R क्यों निकाला था वहां? तो L की वैल्यू हो गई 4.58 इंटू 41.5. सो L की वैल्यू हो गई 190 kmph. ठीक है, ये हो गई L की वैल्यू. ठीक है, अब स्पीड फॉर सुपर एलिवेशन कंसिडरेशन. अब दूसरे पार्ट पे आते हैं. स्पीड फ्रॉम, अब किससे निकालेंगे स्पीड? फ्रॉम सुपर एलिवेशन कंसिडरेशन से हम अब स्पीड निकालेंगे. फ्रॉम सुपर एलिवेशन कंसिडरेशन. एक्चुअल सुपर एलिवेशन कितना दिया है? एक्चुअल सुपर एलिवेशन कितना दिया है? वो है 8 सेंटीमीटर. मैक्सिमम कांट डिफिशिएंसी कितनी हो गई? मैक्सिमम कांट डिफिशिएंसी फॉर हाई स्पीड ट्रेन्स, फॉर हाई स्पीड track equals to 10 centimeters. So theoretical super elevation equals to theoretical super elevation equals to 10 plus 8 equals to 18 centimeters. ठीक है, सो इक्विलिब्रियम स्पीड फॉर दिस सुपर एलिवेशन 18 इक्वल्स टू जीवी स्क्वायर ब्रॉड गेज है बाई 127 आर. ठीक है, so 18 equals to 1.676 into V square
by 127 into 1720, V equals to 153 kmph. हमने स्पीड कैसे कैसे निकाल ली? सेफ स्पीड ऑन द कर्व, हाई स्पीड के लिए फॉर्मूला यूज किया, उसके बाद हमने सुपर एलिवेशन कंसिडरेशन से निकाला. अब हम किस कंसिडरेशन से निकालेंगे? फ्रॉम द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व पॉइंट ऑफ व्यू से. तो अब हमारा निकलेगा जो थर्ड स्टेप होता है वो है स्पीड फ्रॉम द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व. स्पीड फ्रॉम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व्स. ये कैसे निकलेगा? स्पीड फ्रॉम द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व. सो ए पार्ट L इक्वल्स टू E इंटू वी मैक्स बाई 198. ठीक है, वेयर E इक्वल्स टू where E equals to 8 centimeter or 80 mm, right? So L equals to 130 meters, equals to 80 into V max by 198. So V max equals to 320 kmph. B part L equals to D into V max by 198. D equals to 100 mm and L equals to 130 meters. So 130 equals to 100 into V max by 198. So V max equals to 257 kmph. पहले स्टेप बाय स्टेप आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद मैं आगे की चीजें बताऊंगा. ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? है कैलकुलेट द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑन अ कर्व ऑफ हाई स्पीड ब्रॉड गेज ट्रैक हैविंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर. डिग्री ऑफ कर्व 1 डिग्री, अमाउंट ऑफ सुपर एलिवेशन 8 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व 130 मीटर, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द सेक्शन लाइकली टू बी सैंक्शनड, मैक्सिमम स्पीड इज 153 kmph. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम रेडियस निकालेंगे, जो कि रेडियस और डिग्री ऑफ द कर्वेचर है उसका फॉर्मूला यूज करके, राइट. उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम निकालेंगे सेफ परमिसिबल स्पीड. ठीक है, तो उसको हम फॉर्मूला यूज किया 4.38 अंडर रूट आर, वहां से हमने निकाला 190 kmph. स्टेप 2 में हम गए, स्टेप 2 से हम जो स्पीड निकालेंगे वो सुपर एलिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से निकालेंगे. तो स्पीड फ्रॉम ऐसी कंसिडरेशन, एक्चुअल सुपर एलिवेशन कितना है? 8 सेंटीमीटर. मैक्सिमम कांट डिफिशिएंसी कितनी है? 10 सेंटीमीटर. थ्योरेटिकल सुपर एलिवेशन कितना हो गया? दोनों को ऐड किया 10 प्लस 8 तो वो कितना हो गया? 18 सेंटीमीटर, राइट. उसके बाद आपका जो इक्विलिब्रियम स्पीड है ब्रॉड गेज के लिए वो क्या होता है? जीवी स्क्वायर अपॉन 127 आर. तो ई हमारा जो थियोरेटिकल है वो ई थियोरेटिकल ये है, इतना है 18 सेंटीमीटर. तो यहां से हम क्या निकालेंगे? v की वैल्यू. तो यहां से v की वैल्यू कितनी आई? 153 kmph. ठीक है, स्पीड फ्रॉम द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व L इक्वल्स टू ए पार्ट जो है E इंटू वी मैक्स अपॉन 198. तो ये कितना आ गया? v max इक्वल्स टू 320 kmph एंड v max इक्वल्स टू 257
kmph। अब जो सेफ परमिसिबल स्पीड होता है वो 4 से 5 वैल्यूज का मिनिमम वैल्यू होता है, ठीक है। और वो कौन से 4 वैल्यूज होते हैं मैं आपको बताऊंगा, फिर इसका आंसर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो जो जब आपका ट्रांजिशन कर्व भी हमें कंसीडर करना हो, उस केस में हमारी जो सेफ परमिसिबल स्पीड होती है वो मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग होती है। और वो कौन सी मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग होती है मैं बता रहा हूं। the maximum the maximum permissible speed on the curve is minimum of the following। कौन कौन सा? सेफ स्पीड। सेफ स्पीड इस केस में क्या है, कितना आया है सेफ स्पीड ऑन द कर्व, वो है 190 kmph। ये क्लियर हो गया। दूसरा कौन सी वैल्यू लेते हैं, स्पीड फ्रॉम एसई कंसीडरेशन, मतलब स्पीड फ्रॉम सुपर एलिवेशन कंसीडरेशन, स्पीड फ्रॉम एसई कंसीडरेशन, और वो कितना है 153 kmph। तीसरी वैल्यू कौन सी लेते हैं, वो लेते हैं स्पीड फ्रॉम द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन ऑफ द कर्व। तो वो क्या है, स्पीड फ्रॉम द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व 257 kmph। और एक और कौन सा पार्ट होता है, ये लास्ट न्यूमेरिकल है, मैक्सिमम स्पीड दैट कैन बी सैंक्शनड। वो क्या है, दैट कैन बी सैंक्शनड, वो क्या है 153 kmph। तो इन चारों वैल्यूज को देखो, इस केस में कौन सी मिनिमम वैल्यू है 153। तो इस केस में मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड कितनी होगी, आंसर क्या हो गया, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है वो कितनी हो गई 153 kmph। तो आप ये पार्ट चारों जो मैंने बताया है यही याद रखिएगा, और परमिसिबल स्पीड निकालने के लिए इससे ज्यादा आपको कंसिडरेशन नहीं दिए जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल्स, different types of numericals related to negative super elevation, safe permissible speed and all. So thank you guys, have a nice day. In next lecture we'll talk about the new topic. Thank you so much.